वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा, बैंकों की निजकारी के बावजूद मुलाजमीन के मफादात पर नहीं आने दिया जाएगा हर्फ। राहुल गांधी के बयान पर जवाबी हमला करते हुए कांग्रेस पर लगाया बदउनवानी का इल्जाम। हुकूक इंसानी पर कांग्रेस की इल्जाम तराशी को मरकज ने किया मुस्तरद। कहा, हुकूक इंसानी के मामले में मोदी हुकूमत साबिका कांग्रेस हुकूमतों से बेहतर। गद्दारी के मामलों के अदाद-ओ-शुमार पिछली हुकूमतें छुपाती थीं, एनडीए हुकूमत ने आम किए अदाद-ओ-शुमार। मरकजी वजीर रेल पीयूष गोयल ने कहा, रेलवे की निजकारी नहीं करेगी हुकूमत। रेलवे के बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए रेल को बताया कौमी असासा, इसे तरक्की का इंजन बनाने का अज़्म दोहराया। मगरबी बंगाल में तशहीरी मुहिम हुई तेज। बीजेपी सदर जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की बंगाल में रैलियां। तृणमूल कांग्रेस सरबराह ममता बनर्जी की बांकुरा में रैली। मरकज ने कोरोना के बढ़ते मामलात पर महाराष्ट्र हुकूमत को दिया दूसरी लहर का इंतबाह। मरकजी सेहत सेक्रेटरी ने रियासत को लिखा खत, एहतियाती इकदाम अपनाने पर दिया जोर। गुजरात और मध्य प्रदेश के कई शहरों में लगा रात का कर्फ्यू। खेलों में भारत और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा मैच आज अहमदाबाद में। अब तक 1-1 बराबर सीरीज बगैर नाजरीन की मौजूदगी के खेला जाएगा ये मैच। आदाब नाजरीन, शाम 5:30 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालेंगे खबरों की तफसीलात पर। मरकजी हुकूमत ने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की सिमत अहम इकदाम करते हुए बुनियादी ढांचा जाती मनसूबों में सरमायाकारी के लिए अलहदा बैंक कायम करने का फैसला किया है। बैंक का शुरुआती सरमाया 20,000 करोड़ होगा। If you kindly have a look at the public sector enterprise policy which we have come out with and identified those core sectors in which the presence of public sector enterprises will still continue, even financial sector is in it. So to immediately quickly conclude saying, oh, every bank is going to be sold off is not right. And even whether it is banks or any other privatization, I want to take this opportunity to tell through you, the media, that the interest of the workers, interest of those who have put in services over the decades will absolutely be protected. Whether it is their salaries, whether it is their scale, whether it is their pension, it will all be taken care of. And above all, the first premise that I would like to put before you is even when we speak of privatization or disinvestment, we recognize that each one of those units perform for the economy. So if there is a coal unit or a thermal unit, राहुल गांधी के बैंक प्राइवेटाइजेशन के इल्जामात का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूपीए हुकूमत के दौर में कई घपले हुए हैं। Privatizing taxpayers' money was what UPA government did, and probably even privatizing taxpayers' money for one family's betterment. So privatizing is only that. And second, nationalizing loss, did he say? Today public sector banks are loss making and prompt corrective actions are bringing them out because of the telephone banking which happened during his time. His daddy would have probably nationalized the banks, but nationalizing of loss in the banks was during UPA's time. And I would want to add one more. Nationalizing corruption is what they did. So nationalizing corruption and privatizing taxpayers' money for the betterment of one family is all that Rahul Gandhi will have to take as a reply for that tweet which probably some outsourced fellow in his team is feeding him with. I think there should be some more intense homework done by Rahul Gandhi before he even starts speaking and throwing these kind of things
using a spit and run technique. Stand there, be ready for a discussion. You raise your points, we'll also answer you. Not throw allegations and go away. मुल्क में इंसानी हुकूक का मयार घटने के कांग्रेस के इल्ज़ाम पर मरकजी हुकूमत ने तनकीद की है। लोकसभा में बोलते हुए दाखिली उमूर के मरकजी वजीर मुमलिकत जी किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने दौर इख्तिदार में लोगों को टाडा जैसे सख्त कवानीन के तहत गिरफ्तार किया था। मैं कांग्रेस पार्टी से ये बताना चाहता हूं, जो मिसयूज के बारे में जितना कम बात करते तो उतना अच्छा रहेगा। आप मीसा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, एल के आडवाणी जैसे लाखों लोगों को आप मीसा के अंदर मिसयूज करके आप जेल में लगाए। आप जितना कम बात करें तो मिसयूज के बारे में उतना अच्छा रहेगा। कोई अधिकार कांग्रेस पार्टी को नहीं है डेमोक्रेसी के बारे में बात करने का। सेडेशन केस के बारे में जब कांग्रेस सरकार थी, अलग कोई डाटा नहीं रखे हैं। वो पूरा जो आईपीसी क्राइम्स रिकॉर्ड्स रखते हैं उसमें ही मिलाकर रखे थे। हम गर्व के साथ बताना चाहते हैं, मोदी सरकार आने के बाद जो सेडिशन केसेस का अलग डाटा 14 के बाद हम ही अलग डाटा देश के सामने रख रहे। उससे पहले कोई डाटा नहीं रखे थे। कांग्रेस पार्टी छुप छुपाकर आईपीसी में ही रखते थे आप लोग। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि रेलवे की निजकारी कभी नहीं की जाएगी। रेलवे के लिए मुख्तस बजट पर हो रही बहस का जवाब देते हुए वजीर रेल पीयूष गोयल ने ये यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत रेलवे को कौमी असासा मानती है। वजीर रेल ने कहा कि कुछ खिदमात को निजी हाथों में दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रेलवे को तरक्की का इंजन बनाने के लिए अहद बस्ता है। हमारे कई मित्र बोलते हैं कि आप कॉर्पोरेटाइज कर रहे हो, आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आरोप लगता है कि प्राइवेटाइज कर रहे हो। मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय रेल कोई कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। भारतीय रेल भारत की संपत्ति है, भारत की रहेगी, भारत के लोगों की रहेगी। लेकिन आखिर रोड भी भारत की संपत्ति है, तो क्या कोई कहता है कि रोड पे सिर्फ सरकारी गाड़ियां चलेंगी? ऐसा तो कोई नहीं कहता है ना। रोड एक सुविधा बनी है। रोड के ऊपर जितनी ज्यादा गाड़ियां चलेंगी उतना देश का हित है। आपकी भी गाड़ी चले, सरकारी भी चले, बस भी चले, निजी क्षेत्र की बस भी चले, ट्रक चले, सब चलेंगे, उतने देश की आर्थिक प्रगति होगी, लोगों को सुविधा मिलेगी। तो क्या रेलवे लाइन अगर एक बार लग गई तो उस पर भी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि अच्छी सुविधाएं हमारे यात्रियों को मिले? वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने अरकान पार्लियामेंट को बताया कि हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट के तरक्याती फंड की 2019-20 की किस्त पहले ही जारी कर दी है। वजीर खजाना ने बताया कि 2020 से 2022 के दरमियान कोरोना की वजह से एमपी तरक्याती फंड नहीं होगा। 1920, the year before the corona thing happened, every commitment which has been made by honorable MPs will be fulfilled. However, as was the instruction or as was the notification made, for the year 2021 and for the year 21-22, no new commitments on MP lads will be entertained. That rule remains. With that rule remaining in place, for the year before 2020, that is 1920, every commitment will be fluid and money has been cleared. Please, Suniya, kam se kam, that was also a concern. Money has been cleared from Ministry of Finance. MOSPI, the Statistics and Program Implementation Ministry, has also assured me that they will immediately send the money to the districts. Honorable MPs can please approach their district authority. अगली खबर, आयुष के मरकजी वजीर मुमलिकत किरण रिजिजू ने कहा है कि सर्जरी और आयुर्वेद के दरमियान ताल्लुक पुराना है और इसमें किसी को अंदेशा नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले डॉक्टरों को सर्जरी की इजाज़त देने से मुताल्लिक हुक्म पर राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले डॉक्टरों को सर्जरी करने की इजाज़त देने वाले हुक्मनामे के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केस जो दिया है सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहे हैं उसके बारे में तो यहाँ टिप्पणी मैं करना नहीं चाहूँगा, लेकिन सर्जरी के बारे में लेकर के कोई आशंका नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में
आयुर्वेद अष्टांग आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है, ये तो कोई नए तो नहीं है, और सर्जरी तो इसका हिस्सा है। हमारे जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन का जो नोटिफिकेशन लेटेस्ट जो 2020 में निकला है, उसमें जो प्रिस्क्राइब किया है, क्लियरली डिफाइन किया गया है कि वो सर्जरी का प्रोसीड्योर क्या है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई विवाद होना चाहिए। और मगरबी बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। इस मरहले के लिए नामजदगी की आखिरी तारीख 23 मार्च है। उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी की जांच 24 मार्च को होगी और 26 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मगरबी बंगाल में चौथे मरहले में 10 अप्रैल को 5 जिलों की 44 सीटों पर इंतखाबात होंगे। इनमें जनूबी 24 परगना की 11 सीटें, हुगली की 10 सीटें, हावड़ा और कूच बिहार की 9 सीटें और अलीपुर द्वार की 5 सीटें शामिल हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस यकीन का इजहार किया है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत मिलेगी। उन्होंने ममता बनर्जी पर इल्जाम लगाया कि वो खुद के जख्मी होने पर सियासत कर रही हैं। जांच एजेंसियों की जो रिपोर्ट आई है और इलेक्शन कमीशन के पर्यवेक्षक ने जो कुछ भी रिपोर्ट में, उसके भी रिपोर्ट में जो भी बातें आई हैं, उससे स्पष्ट है कि सिक्योरिटी लैप्सेस के कारण जो है ये दुर्घटना हुई है। लेकिन यदि उन्हें चोट लगी है तो हमारी पूरी वो है, मैं यही कामना करता हूं कि वो जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन यह भी उनके हताशा का ही यह परिणाम है जो कि भारतीय जनता पार्टी को उस चोट के लिए लांछित करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह ने मगरबी बंगाल में एक रैली के दौरान एतमाद जाहिर किया कि बीजेपी चुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। अब आप लोगों ने जब संदेश ममता दीदी को दे दिया है लोकसभा चुनाव में, इस बार तो हमें 18 सीटें दी हैं भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में। लेकिन विधानसभा का भी चुनाव होगा तो 200 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतकर पश्चिम बंगाल की विधानसभा में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और राजनाथ सिंह ने मगरबी बंगाल में तशद्दुद के वाकयात पर तशवीश का इजहार किया। तबाही के अलावा ममता दीदी ने कुछ नहीं, चारों तरफ हिंसा ही हिंसा। जहां जहां पर हमारी सरकारें हैं, मैं तो कहता हूं बगल में नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में भी मेरे बहनों भाइयों, जहां इतनी हिंसा होती थी, जहां इतना उग्रवाद था, आज वहां हिंसा करने वाला कोई नहीं रहा। आज वहां शांति है, वहां पर आज अमन चैन है, जब से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की हिंसा क्यों होगी? पश्चिम बंगाल की जनता ममता दीदी से इस सवाल का जवाब चाहती है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सिक्योरिटी में हुई कोताही की वजह से जख्मी हुई हैं। ममता दीदी ने कहा था मां, हाथी, मानुष। अरे भाइयों, आज न मां सुरक्षित है, न मानुष सुरक्षित है, न पश्चिमी बंगाल की माटी सुरक्षित है। इसका जवाब ममता दीदी से दिया जाना चाहिए। अब चोट लगे तभी उन्होंने आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सच्चाई है? मैं नहीं जाना, जांच एजेंसियों ने कहा है उन्हें पैर में यदि चोट लगी है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कारण चोट नहीं लगी है। चोट लगी है तो उनकी सुरक्षा में कमी थी और उनके कारण चोट लगी है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। और मगरबी बंगाल के पुरुलिया में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों की मुश्किलात अब ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी की गुंडागर्दी और अनारकी ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रैली में लोगों को आने से रोका जा रहा था। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां पूरे जोरों पर हैं। आज कांग्रेस ने चेन्नई में अपना चुनावी मंशूर जारी किया। पार्टी ने इख्तिदार में आने पर कई कामों को करने का वादा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले अपने फिनलैंड की हम मनसब के साथ वर्चुअल जरिए से बातचीत की। दोनों लीडरों ने भारत और फिनलैंड के ताल्लुकात में मजीद मजबूती लाने पर बात की है। इस पैंडेमिक के दौरान भारत ने अपने डोमेस्टिक
संघर्ष के साथ साथ विश्व की जरूरतों का भी ध्यान रखा है। पिछले साल हमने 150 से अधिक देशों को दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री भेजे थे और हाल में हमने लगभग 70 देशों को भारत में बनी वैक्सीन की 58 मिलियन से अधिक डोजेज पहुंची है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम अपनी क्षमता के अनुसार पूरी मानवता को आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन अप्रैल के आखिर में भारत का दौरा करेंगे। यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के बाहर होने के बाद से ये उनका पहला अहम सफर होगा। जॉनसन के भारत दौरे का मकसद इस खित्ते में मौक़े को फरोग देना है। बरतानवी वजीर आजम के दफ्तर ने इस सिलसिले में जानकारी दी। जॉनसन का दोनों ममालिक के दरमियान कारोबार से मुतालिक बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिशों के तहत जनवरी में भारत दौरे का मंसूबा था, लेकिन बरतानिया में कोविड-19 इन्फेक्शन में इजाफे के बाद उन्हें ये दौरा मनसूख करना पड़ा था। जॉनसन हुकूमत ने कहा है कि आइंदा बरसों में भारत बहरुल काहिल खित्ते में दिलचस्पी को फरोग देने पर पूरी तरह तवज्जो मरकूज होगी। और महाराष्ट्र में रोज बरोज बढ़ते हुए कोरोना मामलात के पेश नज़र ठाकरे हुकूमत ने नए अहकाम जारी किए हैं। हालिया दिनों में अनलॉक का जो अमल चल रहा था, इन अहकाम के बाद अब उस पर सख्ती से अमलावरी की जाएगी। इन इक़दाम में जो चीज़ें शामिल हैं उनमें होटल, रेस्तरां, सिंगल स्क्रीन थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस 50% गुंजाइश के साथ ही चल सकेंगे। सियासी, समाजी या मजहबी इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। शादियों में 50 अफराद को ही शिरकत की इजाज़त मिलेगी। आखिरी रसूमात में 20 अफराद को ही शामिल होने की इजाज़त होगी। सेहत खदमात और दूसरी लाजमी खदमात के दफातर के अलावा बकिया दफातर 50% गुंजाइश के साथ ही खुलेंगे। वर्क फ्राम होम को ही फ़रोग दिया जाएगा। जगह की गुंजाइश के मुताबिक मजहबी मकामात पर हर घंटे के पेश नज़र अक़ीदतमंदों को आने की इजाज़त दी जाएगी। इस दौरान गुजरात में कोरोना केसेस में इजाफे के मद्देनजर 17 मार्च से अहम शहरों में पाबंदियों में इजाफा कर दिया गया है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया गया है। ये कर्फ्यू 31 मार्च तक लागू रहेगा। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में हुकूमत की बेहतरीन कोशिशों की वजह से अच्छे नताइज मिल रहे हैं। वजारत सेहत और ख़ानदानी फलाह बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों में से अब तक 1,10,27,543 सेहतयाब हो चुके हैं। अब मुल्क में सेहतयाबी की शरह 96.65% हो गई है। मुल्क में कोविड से होने वाली अमवात की शरह कम होकर 1.39% रह गई हैं। 24 घंटे में 20,191 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए हैं। वहीं अब तक 3,29,47,432 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। दुनिया भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक दुनिया में 12,07,54,000 से ज्यादा अफराद इन्फेक्शन से मुतासिर हो चुके हैं। इसी के साथ ही इस वबा की वजह से 26,71,000 से ज्यादा अफराद हलाक भी हो चुके हैं। अमेरिका इस वबाई मर्ज से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है, जहां 3,01,00,000 से ज्यादा अफराद इससे मुतासिर हैं। वहीं अब तक इस वबा से 5,47,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्राजील में भी कोरोना से 1,15,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। और कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में मुल्क की सतह पर रोज़ बरोज़ नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला भी जारी है। वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क भर में 30 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई है। मुल्क की सतह पर आज सुबह 8 बजे तक 3,29,47,432 लोगों को वैक्सीन दी गई। 15 दिन के अंदर 60 साल से ज़्यादा उम्र के 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी गई है। बीजेपी लीडर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने आज राजस्थान में फोन टैपिंग मामले पर कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया। राठौर ने पूछा, कांग्रेस हुकूमत मुसलसल कह रही है कि कवानीन का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जबकि राजस्थान में बरसर इख्तियार कांग्रेस हुकूमत खुद इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। राठौर ने राजस्थान में खवातीन के खिलाफ होने वाले जराइम के बढ़ते हुए ग्राफ पर भी तशवीश का इजहार किया। और कौमी पार्लियामेंटों की बैनुल-अक़वामी तंजीम इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के सदर आत्रे पाचीको भारत के दौरे पर हैं। आज उन्होंने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में अराकीन से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और कई मरकजी वजीर मौजूद थे।
आईपीयू के सदर ने कोरोना वबा से निपटने के भारत के तरीक़ाकार को सराहा। उतना ही नहीं, उन्होंने कोरोना वबा के दौरान दुनिया भर के कई मुल्कों को भारत की तरफ से दी गई मेडिकल मदद की भी तारीफ की। आईपीयू के सदर इस बात के लिए शुक्रिया का इजहार कर रहे थे कि भारत पुर्तगाल का खास दोस्त है। उन्होंने कहा कि भारत और पुर्तगाल के दरमियान 500 साल से ज्यादा का रिश्ता है। आईपीयू दुनिया भर के पार्लियामेंटों की सबसे पुरानी तंजीम है। आईपीयू के सदर ने कहा कि इस तंजीम को आलमी अमन के लिए 2 आलमी इजाज़ात भी मिल चुके हैं। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह ने कहा है कि आईपीयू ने पार्लियामेंटों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने में अहम किरदार अदा किया है। इससे 2030 के लिए दुनिया के पायदार तरक्की के अहदाफ को पाने की राह आसान हुई है। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि ये तकरीब आईपीयू के नए सदर के इस्तकबाल के लिए मुनक़िद हुई है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने दुनिया भर में पार्लिमानी जमहूरियत की ज़रूरत बताई। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया के जमहूरी पार्लियामेंटों के दरमियान राब्ते की ज़रूरत है ताकि उनकी बेहतरीन रिवायात का तबादला हो सके। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हर पार्लियामेंट को दूसरी आज़ाद पार्लियामेंट का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी पार्लियामेंट में हुए फैसले पर दीगर पार्लियामेंट में बहस नहीं होनी चाहिए। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेली जा रही T20 सीरीज का तीसरा मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड ने जीता था, जबकि दूसरा मैच भारत के नाम रहा था। 5 मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है। ताहम टॉप ऑर्डर में लोकेश राहुल की फॉर्म अब भी भारत के लिए बाइस तशवीश है। दूसरे T20 में विराट कोहली ने 2 नौजवान खिलाड़ियों ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को मौका देकर सबको हैरान कर दिया था। ईशान किशन ने अपनी कारकर्दगी से सबको मुतासिर किया, जबकि सूर्य कुमार को बैटिंग का मौका नहीं मिल सका क्योंकि भारत ने आसानी से हदफ हासिल कर लिया था। ख्याल किया जा रहा है कि सीरीज में दोनों खिलाड़ियों को मजीद मौके दिए जाएंगे। इसके साथ ही कप्तान विराट कोहली की फॉर्म में वापसी भी भारतीय खेमे के लिए राहत का बाइस है। नाजरीन, ये थी इस वक्त की खास खबरें। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।